everyone, Assalamu alaikum. We are going to discuss about the Euler's theorem and homogeneity of the functions. As an economist, we do not want to go in the more detail about the Euler's theorem is a mathematical theorem, and it has a detailed derivation and detailed application. Now we have to think about that how the Euler's theorem can be used in the economics and especially in the microeconomics, and how the Euler's theorem is solving our some problem and it is guiding us. Number one, the Euler's theorem says that according to the Euler theorem, demand functions are homogeneous of degree 0. We discuss in detail about the properties of the demand function. Number one, we discussed two demand functions, Marshallian demand function and the Hexian demand function. Marshallian demand function, that's mean they are saying that they are maximizing the utility. Hexian demand function, that's mean they are saying they are the compensated demand function, that's mean the utility are not being compromised. The second thing is that the Euler's theorem is saying that कि जो वो functions होंगे वो they are homogeneous of degree 0 in prices, और ये हमने उसकी properties में भी देखा था. अब देखना इस बात को है कि जो homogeneity of the function, the problem of the homogeneity of the function होती क्या है, हमें कैसे एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करना पड़ सकता है, how it can be occurs in our daily life, and एग्ज़ाम्स में homogeneity के questions किस तरह से आ सकते हैं. Number one, for the Marshallian demand function and for the Hexian demand function, they are the two different equations of the homogeneity. If we are discussing about the Marshallian demand function for the homogeneity, we have to think that the homogeneity can be written as the elasticity on price elasticity plus cross price elasticity and the income elasticity of that good equal to 0. This is the homogeneity equation. अगर आपके डिमांड फंक्शन जो है वो होमोजेनिटी को फॉलो कर रहे हैं, दे आर होमोजीनियस इन डिग्री 0 इन प्राइसेस, तो वो ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे. देन वी कैन डिस्कस दैट द हेक्सियन डिमांड फंक्शन. तो यहाँ पर क्योंकि इनकम का इफेक्ट नहीं होता, यहाँ पे यूटिलिटी आती है, बट यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर हमें दोनों प्राइसेस का सामना करना पड़ता है. दैट्स मीन कि हमारे पास इनकम ना होने की वजह से इनकम इलास्टिसिटी जो है वो यहाँ से क्रॉस हो जाती है, और हमारे पास सिंपल ऑन प्राइस एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का इफेक्ट जो है वो 0 हो जाएगा. इफ इट इज़ हैपनिंग, सो वी कैन से दैट दीज डिमांड फंक्शंस आर होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी प्रूव इट, एंड स्पेशली द जनरलाइज फॉर्म. सो मैं अपने लेक्चर्स को लिंक करूँगा प्रीवियस लेक्चर्स के साथ, ताकि आपको एक कंटिन्यूटी नज़र आए कि how we can say that कि these equations are being proved. So for your reference, we derived the Marshallian demand function in the lecture 48, you can see there. And मैंने उसमें आपको पता है हमारे पास 2 good case था, तो हमने x का Marshallian demand function भी लिया था और y का Marshallian demand function भी लिया था. For your understanding, I'm just solving for the x, and same techniques, same methods you can apply for the commodity function y. And from the lecture 56, we derive the Hexian demand function, and it is this one. And if we have two demand functions, then simple we can say that how the homogeneity equation is satisfying for the Marshallian demand function, and how the homogeneity equation is satisfying for the Hexian demand function. तो अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करूं इन द फॉर्म ऑफ द इलास्टिसिटी को, अगर मैं ओपन करूं तो वो इस तरह से बनेगी कि मुझे इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, और अगर मैं उसकी प्राइस को उसी फंक्शन से डिवाइड कर दूं तो ये ई ऑन प्राइस इलास्टिसिटी आ गई हमारे पास यहाँ पे. अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी लेनी है तो मुझे उसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स लेना होगा, और मुझे फिर पी एक्स से और उस x डिमांड फंक्शन से डिवाइड कराना होगा, तो ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी आ गई. और अगर मुझे इनकम इलास्टिसिटी लेनी है तो मुझे उस फंक्शन को चेंज देखना होगा विद रिस्पेक्ट टू m, और मुझे m और उस फंक्शन को डिवाइड कराना होगा. द क्वेश्चन होमोजेनिटी सेज दैट कि जब मैं तीनों इलास्टिसिटीज ले लूँगा और इनका सम जो है वो मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा ड्यू टू होमोजेनिटी ऑफ फंक्शंस अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम. अब
जो फंक्शंस हमने ड्राइव करे, we say that these are the Marshall demand function, and now we say that whether our Marshall demand functions are satisfying the homogeneity equation or not. And the practical implication is that कि अगर आपके पास on price elasticity given हो और income elasticity given हो, तो you can easily find out the cross price elasticity if you are discussing about the utility maximization case. And that's mean if by using these equations you can find out the unknowns. Other thing, now how it is being proved, if this function is being derivative, partial derivative with respect to px, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा कि ये जो px है जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, और -1 जब बेस में उतरेगा तो आप उसको -1 इस तरह लिख सकते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड जो आपके पास m अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा ये सेम आ गया। एंड नाउ व्हाट इज़ द px स्क्वायर, क्योंकि जब आप px पावर -1 को px पावर -1 को -1 करेंगे तो ये हो जाएगा px पावर -2, और जब इसको डिनोमिनेटर में दोबारा ले आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये तो डेरिवेटिव हो गया हमारे इस फंक्शन का, जो पहली टर्म हमने अचीव कर ली। अब ये इनटू करने जा रहे हैं हम px को x ओवर x पावर यानी x मार्शलियन डिमांड फंक्शन से। अब px एज इट इज रहेगा, यहाँ x मार्शलियन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा पूरा इस फंक्शन से, तो हमने पूरा फंक्शन यहाँ प्लग कर दिया और ये सेम फंक्शन हमने यहाँ प्लग कर दिया, आप देख सकते हैं इजीली। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट के यहाँ पर है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, और आप ये देख सकते हैं कि एक मार्शलियन डिमांड फंक्शन में क्रॉस प्राइस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो सिंपली वी कैन से डैट कि इसके अंदर ये जो डेरिवेटिव होगा x विद रिस्पेक्ट टू पी वाई वो 0 हो जाएगा, और जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी। नाउ वी मूव फॉर द इनकम इलास्टिसिटी, एंड इफ वी मूव फॉर द इनकम इलास्टिसिटी सो वी कैन सिंपल से डैट कि अगर हम इसी मार्शलियन डिमांड फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू m लें तो हमें डेरिवेटिव ये मिलेगा, क्योंकि m यहाँ से सिंपल वाइप आउट हो जाएगा, एंड m और x की जगह पूरा इसको डालें तो हमें ये चीज़ मिल सकती है। सो नाउ वी सॉल्व इट वेरी सिंपल कि ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड ये जो px है और ये जो px है जब ये जाएगा तो ये px स्क्वायर हो जाएगा, तो देन हम इसको डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी टर्म कैंसिल आउट होके -1 हमारे पास रिजल्टेंटली आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर 0 है प्लस, और इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो ये पूरी टर्म भी हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। आप सिंपल अलजेब्रिक रूल लगा के इसको देख कर सकते हैं और ये आपका प्लस हो जाएगा, एंड रिजल्टेंटली वी हैव -1 + 1 0। सो इट्स प्रूव दैट कि जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन जो हमने लेक्चर 48 में किए थे कि वो होमोजेनिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करते, एंड इफ़ यू हैव द प्रॉब्लम ऑन पेपर of the Euler's theorem regarding homogeneity, so you can easily apply these rules. Now we think about the Hessian demand function, and Hessian demand function में income elasticity का काम नहीं होता है। So simple we can say that कि अगर हम इसकी elasticity को ओपन करें तो हम डिमांड फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ले लें और प्राइस रखें और Hessian डिमांड फंक्शन रखें, और उसी डिमांड फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू पी वाई ले लें और पी वाई रखें और Hessian डिमांड फंक्शन रखें। तो आगे ये कैसे सॉल्व हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि इसमें दोनों प्राइसेस की एग्जिस्टेंस होती है। मैं जस्ट इसको ओपन करना सिखाऊंगा कि आपको कैसे उसका डेरिवेटिव लिया गया। अगर देखें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू पी वाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स लेना है। अब पी एक्स डिनोमिनेटर में, अब पी एक्स की पावर जब 1/4 आप न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो गया -1/4 नीचे बेस बन के उतर गया, v एज इट इज रह गया। 3py/4 को हमने डिस्टर्ब नहीं करना, वो भी एज इट इज रह गया। अब यहाँ पर आपके पास जो ये ऊपर गया था तो 1/4 नेगेटिव हुआ था, देन उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया विद द रूल ऑफ द डेरिवेटिव। अब रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया, px/h Hessian डिमांड फंक्शन। सो px एज इट इज रखा और Hessian डिमांड फंक्शन पूरा यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे इसको प्लग कर दिया। अब इसी तरह से हमने इसको देखना है, यहाँ पर ये टर्म मार्शलियन डिमांड फंक्शन में वैनिश हो गई थी बिकॉज देयर वाज नो एक्जिस्टेंस ऑफ द क्रॉस प्राइस, बट देयर इज, सो वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पी वाई। तो अगर इसका पी वाई से डेरिवेटिव लें तो पी वाई की पावर है 1/4,
और जब 1/4 आपके पास नीचे उतरेगी तो पॉजिटिव उतरेगी, देन v3/px और ये पूरी टर्म एज इट इज रहेगी, और py पावर 1/4 में से -1 करेंगे तो सिंपल आपके पास ये बच जाएगा। नाउ द अदर टर्म इज px/x, x हेक्शन डिमांड फंक्शन, और आपने पूरा डिमांड फंक्शन यहाँ पे प्लग कर दिया इसकी जगह में। अब इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि v से आपका v कैंसिल हो रहा है, और ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो रही है, एंड देन जो रिमेनिंग आपके पास बच रहा है 1/4 और px -1/4, और ये आपके पास अगर उसको आप ये करें तो ये -4 बन जाता है अगर आप इसका एलसीएम ले लें। अब यहाँ पर आप देखेंगे px, और जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, और ये क्योंकि डिनोमिनेटर दो न्यूमरेटर में है तो ये आपके अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, ये पावर 1 कहलाएगी आपके पास, और ये कहलाएगी आपके पास 1/4। तो अगेन जब आप इनको सॉल्व करेंगे सारे पीस को तो देखेंगे ये आपके -5/4 बचेगा, ये +5/4 बचेगा, तो ये p पावर आपके पास रिजल्टेंटली हो जाएगी 0, p वैनिश आउट हो जाएगा, तो -1/4 इस तरफ से बच रहा है। नाउ वी थिंक अबाउट दिस टर्म कि इस टर्म में क्या हो रहा है। इस टर्म में हमारे पास v से v कैंसिल हो रहा है, ये पूरी टर्म हमारे पास पूरी टर्म से कैंसिल हो रही है, टाइप px वाली ये वाली टर्म पूरी कैंसिल हो रही है, एंड 1/4 रह रहा है, और p/4 पे पावर है आपके पास 1/4 -1, और अगेन py पे पावर जो है वो एक तो पॉजिटिव है, और ये वाली पावर भी जो है ना वो आपके पास जाके पॉजिटिव हो जाएगी। सो अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो ये एक -3/4 बचेगा, एक पॉजिटिव 3/4 बचेगा, अगेन यहाँ से px भी आपके पास सारा जैसे यहाँ से गायब हुआ था फिर गायब हो जाएगा, देन -1/4 और पॉजिटिव 1/4 आपके पास यहाँ बचेगा, और ये भी रिजल्टेंटली आपके पास 0 हो जाएगा। सो दिस इज solution and the usage of the demand function that I have been calculated in earlier lecture. So we observe that कि जो homogeneity की जो property है वो हमारे demand functions जो है वो satisfy कर रहे हैं। So as a student आपको ये दोनों equations याद रखनी है कि मार्शियली डिमांड फंक्शन में ऑन प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी का जब हम सम करते हैं तो वो 0 आता है। हेक्शन डिमांड फंक्शन में ऑन प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का जब हम सम करते हैं तो वो 0 होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर एंड आई होप दैट यू लर्न अबाउट इट। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर मोर वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।